Honorable Minister of Tribal Affairs and Honorable Minister of State Tribal Affairs to begin this auspicious moment with lamp lighting ceremony. Loud applause, please. Her Excellency, today we have this national conclave on Adi Karmyogi Abhiyan, where we celebrate the performances in PM Janman, Dharti Aaba Jan Bhagidari Abhiyan, and Adi Karmyogi Abhiyan. I now invite Shri Vibhu Nair ji, Secretary, Ministry of Tribal Affairs, to deliver the welcome address. Your Excellency, the President of India, distinguished dignitaries on the dais, esteemed colleagues, and fellow Adi Karma Yogis. It is my profound honor and privilege to welcome you all to this National Conference on Adi Karma Yogi Abhiyan, a celebration of service, of partnership, and most importantly, of hope. We are deeply honored by the gracious presence of Her Excellency, the President of India, whose steadfast guidance and constant encouragement have been a source of strength and inspiration for every Adi Karma Yogi present in this hall and in every village of India. Today's conference brings together senior officers of the Government of India and the states, along with district magistrates, Adi Karma Yogis, Adi Seyogis, from the villages of far-off geographies of India, united on one platform to chart the course towards a tribal vision of India 2030. Throughout the day, deliberations have been held across 5 vital themes. They include education and skill development, health and well-being, livelihood, rural development, governance and institutional reforms. The deliberations have led to some very interesting solutions or suggestions coming from village India that include, like from Tripura, having skill gurukuls, or from other parts of country having mother kitchens to address the specific challenges faced by the tribal villages of the country. These discussions draw upon the learnings of Adi Seva Parv, during which tribal communities, shoulder to shoulder with government officials, prepared over 50,000 tribal village visions 2030, a people-led participatory roadmap that captures the dreams and aspirations of every tribal village of India. Your Excellency, I am pleased to share that this national effort has already borne extraordinary fruit. Over 53,000 Adi Seva Kendras have been launched in these villages as a convergence point for public service delivery. More than 56,000 tribal village visions have been put together and have been placed before the various ministries of Government of India today. Nearly 1 million Adi Sathis and Adi Seyogis have volunteered and pledged an hour every week to community service
what we proudly call the Adi Seva Samay. This is not a program, it's a movement, as you had told us very often, a movement of confidence, of empowerment, and of co-creation. Your Excellency, these achievements stand as a living testament to your visionary guidance and to the leadership of our Honorable Prime Minister, who has placed tribal welfare and empowerment at the heart of India's development. On behalf of the Ministry of Tribal Affairs and every Adi Karmayogi present here and from the villages, I offer our deepest gratitude to you, Your Excellency, for your constant support, your faith, and your inspiration. Guided by your wisdom and inspired by the Prime Minister's call for Viksit Bharat 2047, we reaffirm our collective resolve to build empowered, self-reliant, and vibrant tribal villages that will stand as pillars of developed and inclusive India. With these words, I once again extend a warm welcome to our Honorable Excellency and to all participants of this national conference. Together, let us continue this journey of dignity, of opportunity, and of shared progress and hope. Jai Hind. Thank you so much, sir. I now request Honorable Minister, Tribal Affairs, Shri Jewel Oramji, to welcome and felicitate Her Excellency, the President of India. Thank you, sir. Let's now see a short film on Adi Karmayogi Abhiyan, followed by a short film on PM Janman. चल पड़े हैं दीप लिए अंधेरों को हराने हर गांव से उठे हैं नायक भविष्य नया बनाने भारत की धरती, जहां संस्कृति, प्रकृति और सभ्यता एक साथ सांस लेती हैं, और इसी धरती की आत्मा है हमारे 10 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई बहन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में जनजातीय सशक्तिकरण का एक नया युग शुरू हुआ है, जहां गांवों से लेकर शहरों तक विकास और सम्मान की रोशनी पहुंची है। जन जन के सशक्तिकरण की इस यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ 10 जुलाई 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान के साथ। आदि कर्मयोगी अभियान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल। इसका उद्देश्य रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के माध्यम से जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना। ये कार्यक्रम एक समावेशी और समतामूलक भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्पों को दर्शाता है। देश के कई सारे विभागों के अधिकारियों ने चेंज मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जरिए रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की नई परिभाषा गढ़ी। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। ये अभियान हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया आदि सेवा पर्व देश के कोने-कोने में सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना का सजीव उदाहरण बन गया। इन 15 दिनों में अधिकारी गांवों में पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी, शिकायतें सुलझाईं, योजनाओं की समीक्षा की। गांवों में स्थापित हुए आदि सेवा केंद्र, जहां से शासन की हर सुविधा सीधे नागरिक के द्वार तक पहुंची।
आदि सहयोगी और आदि साथी ने ग्राम सभाओं को जनशक्ति और जन चेतना का मंच बनाया। इस पर्व के दौरान नुक्कड़ नाटक और ग्राम संवादों के बीच जब अधिकारी और नागरिक साथ चले तो तैयार हुए गांव विजन और विलेज एक्शन प्लान, जहां हर गांव ने स्वयं अपने भविष्य की तस्वीर गढ़ी। ये राष्ट्रीय अभियान भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। 86,500 से अधिक गांवों में जन भागीदारी, लगभग 10,50,000 आदि कर्मयोगी, 53,000 से अधिक सेवा केंद्रों की स्थापना, 56,000 से अधिक विलेज एक्शन प्लान तैयार और लगभग 50,000 ग्राम सभाओं ने योजनाओं को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। देश भर में केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और जन प्रतिनिधि इस जन आंदोलन का हिस्सा बने। आदि सेवा पर्व के दौरान तैयार हुए गांव विजन और एक्शन प्लान विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करेंगे। जनजातीय समाज से भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन एवं उनके संरक्षण में तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर है। जनजातीय कल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 24,000 करोड़ के बजट से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना को लागू किया है। हमारे देश में ट्राइबल्स में भी ऐसी अति पिछड़ी ट्राइबल जातियां थी जिन तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पाया था। आज जब पीएम जनमन योजना से इन जातियों तक सरकारी सुविधा पहुंची है तो उन्हें भी भरोसा हुआ है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे लोकतंत्र का असली अर्थ, असली उद्देश्य यही है और हमारी सरकार यही कर रही है। इस महाअभियान के तहत देश के 20,000 से अधिक पीवीटीजी गांवों में मूलभूत सुविधाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित किया जा रहा है। पीएम जनमन के अंतर्गत 2,15,000 से अधिक पक्के घरों का निर्माण पूरा किया है जो उन्हें सम्मान का आश्रय दे रहे हैं। दुर्गम रास्तों पर अब 800 किलोमीटर से अधिक सड़कों का जाल बिछाया गया है जिससे संपर्क आसान हुआ है। स्वास्थ्य अब घर के दरवाजे तक है जिसके लिए 700 मोबाइल मेडिकल यूनिट लगातार सेवा दे रही है। जीवन का आधार जल अब 7,500 से अधिक गांवों के हर घर नल से जल के माध्यम से पहुंच रहा है। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए 2,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए गए हैं। अंधेरा छट रहा है। 1.3 लाख घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और 2,800 से अधिक गांवों में दूर संचार सुविधा से दुनिया सिमट आई है। सिर्फ सुविधाएं नहीं, इस योजना ने आत्मनिर्भरता भी दी है। 430 वन धन विकास केंद्रों से आर्थिक प्रगति के नए द्वार खुले हैं और 200 बहुउद्देशीय केंद्र इन समुदायों के सामाजिक विकास का आधार बन चुके हैं। जनजातीय कल्याण एवं उनके सर्वांगीण विकास को समर्पित भारत सरकार संभावनाओं के नए द्वार खोल रही है। पीएम जनमन द्वारा पीवीटीजी समूह को मुख्य धारा में लाने का सपना अब यथार्थ बन चुका है। ये नए भारत का संकल्प है। Dear members, Ministry of Tribal Affairs has Government of India schemes PM Janman and Dutch Goa. We have successfully conducted Adi Karmyogi Abhiyan across India. To recognize the best performances, may I now request Her Excellency, the President of India, to kindly give memento to the best performers.
We begin with best performing ministries, which are Ministry of Rural Development, Ministry of Power, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Jal Shakti, now PM Janman Best Performing States, Gujarat, Uttarakhand, Telangana, Chhattisgarh. Chhattisgarh is also being recognized for Adi Karmyogi Abhiyan. Tripura. Tripura is also being recognized for Dharti Aba Jan Bhagidari Abhiyan. PM Janman Best Performing Districts, Dhamtari, Chhattisgarh. North Tripura, Tripura. Shivpuri, Madhya Pradesh. Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Navsari, Gujarat. Adi Karmyogi Abhiyan Best Performing States, Jharkhand. Madhya Pradesh. Odisha. Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is also being recognized for Dharti Aba Jan Bhagidari Abhiyan. Adi Karmyogi Abhiyan Best Performing Districts, Pakur, Jharkhand.
बैतूल, मध्य प्रदेश। मयूरभंज, ओडिशा। वलसाड, गुजरात। बांदीपुर, जम्मू एंड कश्मीर। गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। Recognized Master Trainers, Srimati Sarika Dholpuria, Madhya Pradesh. Rakesh Biswal, Odisha. Padma PV, Telangana. Shri Lalit Shukla, Chhattisgarh. Recognized Adi Sayogis, Shri Sanjeev Kumar Maji, Odisha. Shri Chetty Sankra Rao, Andhra Pradesh. Shri Jitul Rabha, Assam. धरती आबा जन भागीदारी अभियान बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, महाराष्ट्र। जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान। धरती आबा जनभागीदारी अभियान बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, सरायकेला, झारखंड। कोरिया, छत्तीसगढ़। ASR, आंध्र प्रदेश। सेनापति, मणिपुर। Her Excellency is kindly requested to unveil
the list of other best performances by pressing the remote. अब मैं माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। आत्मीय भाइयों बहनों, हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मंचासीन है और उनका प्रेरक प्रबोधन हम सबको प्राप्त होने वाला है। हमारे बीच में माननीय जुएल ओराम जी, केंद्रीय मंत्री जनजाति मामले मंच पर हैं। हमारे जनजाति मंत्रालय के माननीय सचिव श्री विभू नायर जी सहित विविध प्रांतों और जिलों से पधारे सभी हमारे कलेक्टर्स, सेक्रेटरीज एवं सभी हमारे आत्मवत मित्रवत बंधु बांधव, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, सभी हमारी बहनें, भाइयों बहनों, आज हम सभी के लिए यह अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आदि कर्मयोगी अभियान के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे बीच भारत की प्रथम नागरिक जनजाति समाज की गौरव परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मंचासीन हैं। आपका आगमन हमारे लिए अपार सम्मान और प्रेरणा का अवसर है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से लौकिक और पारलौकिक कोई भी लक्ष्य हो असंभव नहीं है। आपका नेतृत्व हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी दृढ़ जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देता है। आपने जनजाति समाज के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और महिला सशक्तिकरण के लिए जो योगदान दिया है, वह देश के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला, आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हुआ है। आपका सादगीपूर्ण जीवन और उच्च आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, बल्कि सेवा, कर्तव्य निष्ठा और त्याग से परिभाषित होता है। हम सभी आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए और अधिक प्रेरित करती है। ममतामयी, करुणामयी सुभाषिस के लिए जनजाति समाज लालायित है। तीनों योजनाएं जो राष्ट्रीय शिखर पर प्रतिष्ठित हो रही है, इन तीनों योजनाओं की जो निर्मित हुई है आपके ही अंतस से, आपके करुणा में चेतना से प्रादुर्भूत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, प्रधानमंत्री जनमन,
और आदि कर्म योगी, जिसके माध्यम से जनजाति समाज का द्रुत गति से विकास सुनिश्चित हो रहा है। मैं जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं आपके उज्जवल यशस्वी भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। Dhanyavad, sir. I now request the Honorable Minister of Tribal Affairs, Shri Jewel Oramji, to kindly deliver his address. महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मेरे सहयोगी मंत्री दुर्गादास उइके जी, हमारे मंत्रालय के सचिव विभू नायर जी, हमारे मंत्रालय के ओएसडी श्रीमती रंजना चोपड़ा जी, यहाँ उपस्थित सभी विभाग 17 विभाग जो हमारा धरती आबा में कन्वर्ज कर रहे हैं के सेक्रेटरीगण, प्रदेश से आए हुए प्रमुख सचिव, कमिश्नर, सेक्रेटरी, बाकी जनजाति कार्य को देखने वाले आईटीडीए प्रोजेक्ट ऑफिसरगण, आदि क्रम योगी को आगे बढ़ाने वाले मास्टर ट्रेनर और मीडिया के साथीगण, मैं महामहिम राष्ट्रपति का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि वो समय दिया हम लोग को, आप लोग को हम लोग प्रोत्साहन के रूप में सम्मानित किया। और आज जो 5 अलग अलग जो संगोष्ठी हुआ उसमें आपने विचार दिया और उसमें से अच्छा सुझाव आया है, ऐसा मेरे को सूचना मिला है, उसको आगे हम काम में लगाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जनजाति समुदाय के हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं और बहुत शुरू से ही जानता हूं। वो रायरंगपुर म्यूनसिपैलिटी के वार्ड काउंसिलर के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करके आज सर्वोच्च पद भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पद में वो आ चुके हैं। जीवन में उनका बहुत उतराव चढ़ाव रहा, बहुत तकलीफ भी हुआ उनका, इसके बावजूद वो जनजाति के लिए समर्पित कार्य कर रहा है। उन्हीं का सोच, उन्हीं का दिमाग का ये उपज है कि पीएम जनमन शुरू किया जाए, जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया और 24,000 करोड़ का राशि स्वीकृत करके घोषणा करके उसको काम में लगाने के लिए बताया। महामहिम राष्ट्रपति जी का ही सुझाव था कि हम धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का भी चालू करें। एक गांव में हम कुछ काम करके छोड़ देते हैं, इसमें कोई नहीं होता है, हमको पूरा कन्वर्ज करना है। टीएसपी अप्रोच जो है, ट्राइबल सब प्लान अप्रोच है, इसको नॉशनल नहीं करना है, इसको आपको प्रैक्टिकली करना है। जैसे आरडी मिनिस्ट्री आपका प्रधानमंत्री आवास तो बनाता है, लेकिन जनजाति के लिए स्पेशल बनाए। ऐसे प्रधानमंत्री आपका जो रोड है, रास्ता बनाता है, लेकिन जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से 80,000 किलोमीटर का रास्ता अलग से बनाए, 25,000 किलोमीटर का। ऐसे आपका इरिगेशन मिनिस्ट्री है, जल संसाधन मिनिस्ट्री है, आपका इलेक्ट्रिफिकेशन MNRE है, ये सब कन्वर्ज करें और टोटल आपका 549
डिस्ट्रिक्ट भारत का, इसमें वो काम करे। 3,290 करीब का ब्लॉक है, करीब करीब का। इसमें हम लोग जाएं, 63,000 गांव में, उससे ज़्यादा गांव में हम लोग संपूर्ण करें। इसके लिए काम करने के लिए आपने निर्देशित किया और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकृत किया और हमारा मंत्रालय को नोडल मिनिस्ट्री के रूप में काम करने के लिए बताया और बाकी मंत्रालय इसमें पूर्ण सहयोग से काम कर रहे हैं। आदि कर्मयोगी सशक्तिकरण, लोगों को एम्पावर करना, जनजाति समाज के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा, उनका समाज में से ज़्यादा लोग आएं और काम करें, इसके लिए भी आपने प्रेरणा दिया। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने 5 सेमिनार राष्ट्रपति भवन में बुलाया, उसमें से रिटायर्ड IAS, IPS, जजेस और इस दिशा में काम करने वाले NGO से लेकर बाकी व्यक्तियों को आपने 60 का संख्या में एक सूचीबद्ध करके हम उसको हमके सहयोग से आपने उनको बुलाया और उनको आपने प्रेरणा दिया, उनको मार्गदर्शन किया कि आपका अगर काम करना है, आपका समाज का उत्थान करना है, बाकी लोग आएंगे, इसमें कोई मना नहीं, लेकिन आपको स्वयं को इसमें आना है। उसी क्रम से आपका ये आदि कर्मयोगी का एक टाइप का चिंतन हुआ। आज इस अभियान में आप सफलतापूर्वक 68,620 गांव तक हम लोग पहुंच पाए हैं, ऐसा हम लोग के पास आंकड़न आया है। ऐसे 53,365 से अधिक गांव में हमने आदि सेवा केंद्र स्थापित कर चुके हैं और 10.35 लाख से ज़्यादा आदि साथी जो हम लोग के साथ रजिस्टर्ड होके काम करने के लिए वो संकल्प लिया है और उसमें काम शुरू किया है। 56,453 गांव में कार्य योजना का मंजूरी, एक टाइप का उसमें वो लोग को मैंने विलेज एक्शन प्लान ये स्वीकृत किया है, लेकिन भारत सरकार ने 44,169 गांव में इसको हमने मंजूरी देके काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बता चुके हैं। ऐसे आपका बाकी जो काम है इसमें हम लोग निरंतर प्रगति में हैं और सफलता पाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्रयास है। मैं आज का उद्घाटन भाषण में आप लोग को बताया कि जनजाति समाज में एक ही चीज़ होता है कि वो विश्वास और भरोसा करना। आप उनमें उनका मन जीतने के लिए कोशिश कीजिए, इसको मैंने बताया है। आप जरूर उसमें कोशिश करेंगे। ये एक सुनहरा मौका है हम लोग के लिए कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति आज जनजाति समाज से आते हैं और जनजाति का तकलीफ और जनजाति का जो क्या तकलीफ है, क्या कमी है, इसके बारे में वो भली भांति उसको जानते हैं, पूरा से जानते हैं। मैं जनजाति का मंत्रालय को ये तीसरा बार केंद्रीय मंत्री के नाते में काम करने के लिए मेरे को मौका मिला है। मैंने 2 बार काम किया। पहले हम आर्टिकल 275(1) का बहुत कम उपयोग करते थे और 100 करोड़ का ही बजट देते थे, लेकिन आज हमने उसको काफ़ी बढ़ाया है। ये आर्टिकल 275(1) ऐसा एक प्रावधान है भारत का संविधान का कि भारत सरकार जो भी चाहेगा, कहाँ भी चाहेगा, जनजाति के लिए अगर भलाई हो रहा है तो उसके लिए दे सकता है। ये उसका मैंडेट है। ये मैंडेट को थोड़ा, क्योंकि ये मंत्रालय पहले आपका होम मिनिस्ट्री में था, फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में वेलफेयर मिनिस्ट्री, ऐसा होते होते आपका सोशल जस्टिस का एक TD डिवीजन था। मैंने मंत्री बना, लेकिन मेरे को 3 दिन तक मेरा पास कोई नहीं आए। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, भारत सरकार का मैंने मंत्री बना लेकिन मेरा पास कोई नहीं आ रहा है। लेकिन लास्ट में उनको पता चला कि ये TD डिवीजन का अलग है, सोशल जस्टिस से इसको बाइफरकेट किया गया है
और उसमें जाना है। आशा दास थे उस समय में सेक्रेटरी, और एक महांती बाबू बोल के था हमारा डायरेक्टर थे। वो लोग आए, फिर मैं थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन फिर वो लोग पूरा दम से काम किया। हम टीएसपी एरिया, ट्राइबल सब प्लान एरिया, शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सब नोटिफिकेशन करने का अधिकार हम लोग का है। किसको जनजाति में हम लेंगे नहीं लेंगे, ये आर्टिकल 342 का संविधान का हिसाब से हम लोग का अधिकार है। आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि जनजाति ट्राइबल मतलब ये एक अलग समाज है, ऐसा नहीं है। ये भारत का ही समाज का एक अंग है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कारण हम उसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देते हैं। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं है। पीएम सोहित जो डिप्टी स्पीकर लोकसभा का होते थे, वो लाक्षाद्वीप से रिप्रेजेंट करते थे, एंड वो शेड्यूल ट्राइब के रूप में आते थे। वॉज ए मुस्लिम, लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब होते थे। तो इसलिए भारत सरकार में किसी को भी हम ट्राइबल बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे अगला पिछला ऐसा नहीं है, वो एरिया स्पेसिफिक है। महाराष्ट्र में तो तहसील के हिसाब से चलता है। किस तहसील में एक जनजाति वो ट्राइबल है तो दूसरा तहसील में वो नहीं है। ये एरिया स्पेसिफिक है, एंड आपका एक टाइप का कास्ट स्पेसिफिक है, और आपका उनका डेवलपमेंट का इंडिकेटर के स्पेसिफिक है। तो इसलिए जनजाति समाज बाकी समाज से अलग नहीं है, ये भारत का ही समाज है। वो पुराना व्यवस्था में ही चलता है, लेकिन इनका थोड़ा चलन और इनका रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था ये अलग है। इसको समझना पड़ेगा। आप लोग समझेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी आए हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होगा, और आगे फिर हम प्रेरित होके, प्रेरणा लेके हम आगे फिर जोरदार से काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का, आप लोग का सबका मैं स्वागत करता हूं और मेरा बात को ही समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you, sir. May I now respectfully invite and request Her Excellency, the President of India, to address the gathering. केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी, सचिव जनजातीय कार्य विभाग श्री विभू नायर जी, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए जनजातीय भाइयों और बहनों, देवी और स्वजनों, आज आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आयोजित इस नेशनल कॉन्क्लेव में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये कार्यक्रम प्रशासन को सही अर्थों में सहभागी, समावेशी और लोगों की भागीदारी पर आधारित बनाने के हमारे राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी राज्यों, जिलों, मास्टर ट्रेनर्स, आदि सहयोगियों को और आदि साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबने जनजातीय भाई बहनों की सक्रिय भागीदारी के साथ उनके विकास के लिए जो प्रयास किए हैं, असराहनीय है। इस अवसर पर मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, उनकी पूरी टीम और अन्य मिनिस्ट्रीज की भी मैं सराहना करती हूँ, जिन्होंने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम में अत्यंत सराहनीय काम किए हैं और आज ही उनको पुरस्कृत भी किया गया है। आदि कर्मयोगी अभियान इस परिवर्तनकारी सोच के साथ शुरू किया गया है कि प्रत्येक आदिवासी गांव आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बने। इस अभियान के माध्यम से ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के विकास की यात्रा में आदिवासी समुदाय की भी भागीदारी हो और विकास का लाभ भी
सभी आदिवासी क्षेत्रों और लोगों तक पहुँचे। मैं यहाँ आदिवासियों के चरित्र के बारे में मैं कहना चाहूँगी। आदिवासी जो सदियों से इस भारत में रहते हैं, लेकिन आदिवासी का चरित्र ऐसे है, आज हम देश आज़ादी के 75 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आदिवासी अभी तक उसी जगह पे है जहाँ आदिम काल में थे, क्योंकि आदिवासी अपने स्वाभिमान से जीते हैं। आदिवासी कभी किसी को मांगते नहीं, अपने अंदर ही वो उनके ज़रूरत क्या है वो खोजते हैं और जानते हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वोट देते हैं, लेकिन मांगना कभी सीखे नहीं। उनके गांव में रास्ता है कि नहीं, बिजली आया कि नहीं, जो भी सुविधाएं सरकारी द्वारा हो रहा है खुद सरकार दे रहे हैं उनके द्वार जाके तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो भी वो भी ठीक है। इसलिए आज हम उनके लिए स्वतंत्रता से सोचने को पड़ता है गवर्नमेंट को, कि उनके लिए भी हम लोगों को सोचना है और उनको सिखाना है सोचने के लिए, खुद के लिए। आज बहुत सारे आदिवासी भाई बहन IAS IPS तो बन गए हैं। ये केवल गिने चुने हैं, बाकी ट्राइबल भाई बहन वहीं पे ही रहते हैं, खुद से अपने जीविका अर्जन करते हैं, खुद से खाते पीते हैं, लेकिन मांगते नहीं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं देते हैं, लेकिन किसी के पास पहुंच रहा है, किसी के पास नहीं। आज गवर्नमेंट उनको आवास योजना के लिए तहत उनके लिए भी व्यवस्था किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो आते नहीं, मीटिंग आते नहीं, उनके नाम इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन बार बार वो कट जाते। इसीलिए गवर्नमेंट आज स्वतंत्रता से स्पेशली उनके लिए सोच रहे हैं। उनका घर होना चाहिए, उनके बच्चे स्कूल जाना चाहिए, उनके गांव पे रास्ता होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए। स्वतंत्रता से हमको सोचना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए, कुछ बोलना सीखे, खुद के लिए, खुद के समाज के लिए कुछ करना सीखे। हम लोगों को सहयोग करना होगा और उनको भी शामिल करना होगा इसी कर्मों में, और उसको सिखाना होगा कि हर रोज़ उनके लिए सोचना गवर्नमेंट का ही काम केवल नहीं है, खुद का भी काम है कि खुद के लिए सीखना और समाज के लिए सीखना चाहिए। आज इसीलिए गवर्नमेंट ने ये आदि कर्मयोगी योजना शुरुआत किए हैं। मुझे लगता है इसी से आज जो हम सपने देख रहे हैं, ये 2047 तो देश को हम एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनका भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि आज 10 से 15 करोड़ आदिवासी जो पिछड़े हो गए उनको भी साथ में लेना चाहिए, और केवल साथ में लेना चाहिए नहीं, उनको भी सिखाना चाहिए, वो भी खुद आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ किया गया है। आदि सेवा पर्व में ट्राइबल विलेज विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए गए। ये डॉक्यूमेंट्स जनजातीय समाज के लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि आज जो ट्राइबल एक्शन फ्रेमवर्क बनाया गया है वो हमारे जनजातीय भाई बहनों के विकास और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान के अंतर्गत मुझे भी देश के विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदाय के भाई बहनों से उनके अनेक अवसरों पर संवाद करने का अवसर मिला है। आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वे राष्ट्रपति भवन में आए और उन्होंने अपने विचार साझा किए। जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में जो
चुनौतियां हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। मैंने उन प्रतिनिधियों से भी जो कहा वो मैं आज आपसे भी कहना चाहती हूँ। आज यहाँ देश भर से अधिकारी आए हुए हैं जो अभियान को और योजनाओं का लागू करेंगे और आदिवासी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आप सब संकल्प लें कि आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य पूरा करना है और सभी जनजातीय भाई बहनों को साथ लेकर उनके विकास के लिए अथक परिश्रम करना है। आज आप सब ने इस नेशनल कॉन्क्लेव में भाग लिया है। मुझे विश्वास है कि आज के इस कॉन्क्लेव में आपको दूसरे राज्यों से और अधिकारियों से कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने अथवा अपनी समस्याओं का समाधान करने की तरीका भी समझ में आए होंगे। आप सबने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा किए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर नई ऊर्जा और नवीन सोच के साथ कार्य करेंगे तथा एक दूसरे से संपर्क भी बनाए रखेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत एक जनजातीय समुदाय देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय परंपराएं हमें याद दिलाती है कि विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही होनी चाहिए। इन समुदायों के समग्र विकास के लिए हाल के वर्षों में सरकार ने अनेक ठोस कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीकी कौशल और शासन व्यवस्था में समान भागीदारी के अवसर भी प्रदान करना है। सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं का तेजी से विस्तार किया है। सड़क, बिजली, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों की पहुंच बढ़ाई गई है। शिक्षा के माध्यम से जनजातीय युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रवृत्ति कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं से पारंपरिक कारीगरी, हस्तशिल्पी और उद्यमिता को नई दिशा मिली है। इन प्रयासों से न केवल आजीविका के साधन बढ़े हैं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हुई है। देवियों और स्वजनों, आदि कर्मयोगी अभियान के द्वारा ग्राम सभाओं और समुदायों के नेतृत्व वाली संस्थाओं को सशक्त बनाने से जन भागीदारी की भावना को मजबूती मिली है। इस अभियान में हमारे आदिवासी समुदाय के ज्ञान और प्रकृति के प्रति प्रेम का सम्मान भी निहित है। देश भर में आदि सेवा केंद्र की स्थापना स्थानीय शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये केंद्र सिंगल विंडो फैसिलिटी सेंटर्स के रूप में कार्य करते हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि प्रगति के साथ साथ जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आदि संस्कृति जैसे पहल ये दिखाती है कि सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक प्रगति दोनों ही विकास के पूरक स्तंभ है। जनजातीय विरासत को डिजिटल तकनीक से जोड़कर पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित भी रखा जा सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि यहाँ 1500 से ज़्यादा जनजातीय ग्रुप से उनका भाषा, उनका रहन सहन, उनका संस्कृति, उनका बोलचाल अलग अलग है। इसीलिए उनके भाषा, संस्कृति आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त हो रहा है। उनको संरक्षित करके रखना, उनको भाषा संस्कृति को बचा के रखना
हम सबका देश का काम है। इसीलिए अभी का ये डिजिटल युग में उसी चीज़ को आसानी से हम संरक्षित कर सकते हैं और उनकी संस्कृति को बचा सकते हैं। देवी और स्वजनों, आज का कॉन्क्लेव ये दर्शाता है कि जनजातीय समाज की सार्थक भागीदारी से राष्ट्रीय नीति को प्रभावित किया जा सकता है तथा योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आदि कर्मयोगी अभियान एवं पीएम जनमन, धरती व जनभागीदारी अभियान और धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे सभी अभियानों के माध्यम से जनजातीय समाज का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। हम विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमें ये याद रखना है कि देश और समाज की वास्तविक प्रगति समाज के सभी वर्गों के विकास में निहित है। सामूहिक विकास, सर्वांगीण विकास करने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष के केवल फेस और हाथ को सुंदर दिखाने से नहीं होगा, सभी अंगों को, राष्ट्र पुरुष का सभी अंगों को ध्यान देना होगा, तो वो एक सुस्त भारत, सुस्त राष्ट्र पुरुष कहलाएंगे। हम विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में हमको और बेहतरीन तरीके से काम करना होगा और निर्धारित इसको अपने नियति स्वयं निर्धारित करने के लिए सशक्त भी होना होगा और उनको सिखाना भी होगा। अंत में आदि कर्मयोगी अभियान और इस कॉन्क्लेव के आयोजन के से जुड़े सभी लोगों की मैं सराहना करती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आदि कर्मयोगी योजना और जो भी इसके तहत 3-4 बिंदु को लिया गया है, मुझे लगता है हम लोगों का जो सपना है, प्रयास है और ज़रूर फलीभूत होगा और पीछे रह गए जो जनजातीय समाज मुख्यधारा में शामिल होंगे और देश के विकास में और भी सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों के नेम स्क्रॉल पर थे, जिनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो अपने सर्टिफिकेट्स बाहर से कलेक्ट करें। आई रिपीट, ऑल दोज हु हैव नॉट गॉट देयर सर्टिफिकेट्स